Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and in this video we are going to start with the NCERT solutions for our chapter Tarot's Reward. In the last video we completed reading the chapter, we discussed the difficult words, we understood the theme of the chapter, and if you have watched that video clearly and honestly without any distractions, so you would be able to answer all these questions within a minute. So let's start with our first question. Why did Tarot run in the direction of the stream? अब Tarot क्या उसको पता था कि उसमें साके है? तो why did he run for the stream? He ran for the stream. Why? Because he was very thirsty, right? So Tarot ran in the direction of the stream because he was very thirsty. ये हो गया आपका पहला point, because he was very thirsty. He had never seen a rushing stream or heard the sound of falling water in that part of the forest. उसने कभी सुना ही नहीं था, ना किसी ने उसे बताया था कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई रशिंग स्ट्रीम भी है. स्ट्रीम क्या होता है? अ नैरो रिवर, छोटू सा नैरो रिवर. ओके, सो ही हैड नेवर सीन अ रशिंग स्ट्रीम और हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर. उसने कभी एक रशिंग स्ट्रीम की आवाज़ नहीं सुनी थी या एक फॉलिंग वाटर की आवाज़ नहीं सुनी थी इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड टैरो's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक? टैरो के फादर को जब उन्होंने सैक पी लिया तब उनको कैसी खुशी हुई? पहला तो ही स्टॉप शिवरिंग एंड देन ही डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द ड्राइंग रूम, रिमेंबर? सो Tarot's father was so delighted. Delighted का मतलब होता है he was so happy with the sake that when he swallowed a sip, जैसे ही उन्होंने एक sip swallow किया था, he stopped shivering. क्या हुआ? पहली चीज he stopped shivering and became energetic. Second क्या हुआ point? He became very energetic and did a little dance in the middle of the floor. And he did a little dance in the middle of the floor. ये हो गया हमारा third point. Okay, so Tarot's father was so delighted with the sake that when he swallowed one sip of the liquid, when he swallowed the first sip of the liquid, he stopped shivering, he felt energetic and he did a little dance on the floor. Next question is, what did the waterfall give Tarot? Why did the waterfall give Tarot sake and others water? अच्छा, ये आंसर दिखने में बड़ा लंबा लग रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड कि जो वाटरफॉल था उसने टारो को साके दिया लेकिन बाकी लोगों को कोल्ड वाटर दिया. ऐसा क्यों हुआ? सो हमको इसमें क्या बताना पड़ेगा? द वाटरफॉल गिव टारो साके एंड अदर्स वाटर बिकॉज, ये फर्स्ट लाइन तो क्या हो गई? क्वेश्चन की हो गई. Tarot was a very thoughtful and dutiful son to his parents. सबसे पहले हम टैरो के बारे में बताएंगे कि वो बहुत thoughtful और dutiful son था. अब ये हम इतनी बार चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि तो याद ही हो जाना चाहिए. तो ये हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? He used to serve his parents with dedication and sincerity. वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा था? बहुत ही डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ वो उनके साथ था. मतलब वो बहुत सिंसियर था उनकी तरफ, बहुत डेडिकेटेड था उनकी तरफ. द साकेस फ्रॉम द वाटरफॉल वॉज अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस. और इन दोनों फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट की वजह से दिस वॉज अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस. मतलब ये उनके लिए क्या था? एक रिवॉर्ड था. On the other hand, the people of his village got plain water because they were greedy. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका बस एक ही पॉइंट है लोगों के बारे में जो लिखना है कि जो लोग थे वो बहुत ग्रीडी थे. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो वन मार्क के लिए आए या 2 मार्क्स के लिए आए तब हम कैसे लिखेंगे इसको? आप सबसे इतना लिख सकते हो दैट द वाटरफॉल गेव टैरो साके एंड अदर्स वाटर बिकॉज टैरो वॉज अ वेरी थॉटफुल dutiful son who served his, like he was a very good son, and the waterfall gave sake as a reward, while the people they were greedy, so it gave them cold water. Right? Simple answer. But अगर ज़्यादा marks में आएगा then write this answer. Okay? आगे बढ़े. Why did the villagers want to drown Taro? अब villagers का दिमाग क्यों खराब हुआ? वो क्यों चाहते थे कि वो Taro को drown कर दे, मतलब उसको डुबा के मार डालें? Why did they want it? When the villagers went to the waterfall with big pitchers and vessels to collect sake,
जब वो लोग फॉरेस्ट में उस स्ट्रीम के पास गए, वो बड़े बड़े बकेट्स और पिचर्स लेके टू कलेक्ट साको, क्या हुआ? दे सिंपली गॉट प्लेन वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल. उनको क्या मिला? प्लेन वाटर मिला वाटरफॉल से. They thought that Taro had fooled and tricked them. उनको क्या लगा कि टैरो ने उनको उल्लू बनाया, उनको ट्रिक किया है. Hence they decided to punish him by drowning him in the same waterfall. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपन इसको पनिश करते हैं और उसको उसी पानी में डुबा के मार डालते हैं. This is what they decided. So इसमें पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है? दैट जो विलेजर्स थे वो अपने साथ बड़े बड़े वेसल्स और पिचर्स लेके आए थे, लेकिन उनको प्लेन वाटर मिला. इसीलिए उनको क्या लगा कि टैरो ने उन्हें फूल किया है, ट्रिक किया है, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू पनिश हिम बाय ड्राउनिंग हिम इनसाइड द वाटरफॉल. दैट्स इट. कूल. शैल वी मूव अहेड? Why did the emperor reward Taro? अब emperor जो था, वहाँ का जो राजा था, उसने टैरो को रिवॉर्ड क्यों दिया? Because emperor was very happy that he was such a dutiful son, a thoughtful son, a sincere good son, that he wanted everyone to understand the importance of being good to your parents. Okay, so the emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents, for being good and kind towards his parents. This was emperor's way. वो इस तरीके से क्या बताना चाहते थे? वो encourage करना चाहते थे सबको, ताकि वो respect करें, obey करें और अपने parents को serve करें. So this was his way. Okay, so this is our answer. अगर कोई भी doubt होता है तो please ask me and I'll clarify your doubts. Next is, now this is the very easy. Mark the right item. Taro earned very little money. क्यों? Because he did not work hard enough? No. The villagers did not need wood? No. The price of wood was very low? Yes. Wood की प्राइस ही बहुत कम थी, इसलिए उसे कम पैसे मिलते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Taro decided to earn extra money. क्यों एक्स्ट्रा मनी चाहिए था उसका? To make life more comfortable? No. To buy his old father some sake? Yes. To repair the cracks in the hut? No. So the answer is he wanted to buy some sake. Right? Now we are going to the third one. The neighbor left Taro's hut in a hurry because जो neighbor थी उसने फटाफट वहाँ से क्यों चली गई? She was delighted with the drink. She was, but not because of this. She was astonished to hear Taro's story. ठीक है, वो astonished भी थी, लेकिन इसलिए भी नहीं गई थी. She wanted to tell the whole village about the waterfall. Yes, she wanted to tell everyone about the magical waterfall. So this is our answer. Now let's move forward and we are going to start our grammar part. Strike off the words in the below box that are not suitable. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was. टैरो चाहता था कि वो उसके पेरेंट्स को जो भी चाहिए वो उनको सब प्रोवाइड करे, उनको बहुत ही ड्यूटीफुली सर्व करे. इससे क्या पता चलता है हमें टैरो के बारे में? क्या वो थॉटफुल था? दिस शोज दैट ही वॉज थॉटफुल. यस, ओके, ही वॉज थॉटफुल. दैट ही वॉज हार्ड वर्किंग. वॉज इट हार्ड वर्किंग? ओके, ही वॉज हार्ड वर्किंग. वॉज ही लविंग? यस, ही वॉज लविंग. Was he honest? कैसे हमें ये पता चलता है कि वो ऑनेस्ट था? ये तो नहीं पता चलता हमको. ओके, नेक्स्ट वन क्या है? कंसिडरेट. Was he considerate? कंसिडरेट मतलब कि हाँ समझ रहा हूँ मैं क्या है. Was he trustworthy? ओके, क्या वो ट्रस्टवर्दी था? Was he efficient? Was he kind? इससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि वो काइंड था, ठीक है, वो ऑनेस्ट था. सॉरी, ऑनेस्ट भी था या नहीं पता, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि देखो टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. सो इससे सिर्फ इस लाइन से हमें पता चलता है कि ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ट्रस्टवर्दी एंड ही वॉज एफिशिएंट. ठीक है, सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वो ऑनेस्ट था कि वो चीटिंग नहीं करेगा, वो देना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसने कुछ गलत काम नहीं किया. और वो ट्रस्टवर्दी था, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता था, वो बहुत एफिशिएंट था. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. कौन सी चीज़ थी जिसने टैरो को बहुत सैड कर दिया था? अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिकेम टू ब्लो? नो. टैरोस फादर्स ओल्ड एज? नो.
Taro's inability to buy an expensive sake for his father. वो साके नहीं ला पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा sad था. So that's our answer. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. ये this से क्या पता चलता है? The most beautiful fountain in the city? नहीं तो. Rewarding Taro with gold and giving the fountain in his name? Yes. Sending for Taro to hear the story? No. This मतलब जो उन्होंने ये किया, जो वाटरफॉल का नाम टैरो के ऊपर रखा, इससे सिर्फ ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो बाकी बच्चों को एनकरेज कर सकें टू बी ड्यूटीफुल, टू बी काइंड, लविंग एंड टू सर्व देयर पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम. अब हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें इनको राइम करना है. यंग, चलो एक काम करते हैं, इसको हम डाल देते हैं नंबर 1. यंग 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 यंग. तो इसमें जो है कौन सा वर्ड है जो यंग के साथ राइम करेगा? लंग. इसको भी नंबर 1 कर देते हैं. दूसरा है वैक्स. वैक्स के साथ क्या राइम करेगा? एक्स. थर्ड है वे. वे के साथ क्या राइम करेगा? डे. नेक्स्ट वन इज सैड. सैड के साथ क्या राइम करेगा? बैड. और कुछ करेगा राइम? नहीं. नेक्स्ट है कुड. कुड के साथ क्या राइम करेगा? कुड, वुड. ओके, ये हो गया मेरा कुड के साथ राइम करने वाला वुड. नेक्स्ट है स्टॉप. स्टॉप को अपन नंबर 6 कर देते हैं. स्टॉप के साथ चॉप. नेक्स्ट इज मनी. मनी के साथ क्या राइम करेगा? सनी. ओके, साउंड. साउंड के साथ राउंड. फिर फास्ट. फास्ट के साथ राइम करेगा लास्ट. ओके, सो वी आर डन. दिस इज वेरी सिंपल गाइज एंड इट्स फन. सो दीज आर आवर आंसर्स. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है इन सारे वर्ड्स से. डैश अ वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड. सो अ young woodcutter. Okay, so that is our first वाले में आ जाएगा. A young, Y-O-U-N-G. A young woodcutter lived on a lonely hill. So यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? lonely. He was a dash son who worked. अब वो कैसा सन था? वो एक thoughtful son था. तो यहाँ पे आंसर क्या लिखते हैं हम? He was a thoughtful son who worked hard. Who worked hard but earned कितना money? Little money. Okay. One day he saw a dash waterfall. Beautiful waterfall. What did he see? He saw beautiful waterfall. Hidden behind a rock, he tasted the water and found it delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. राइट. अभी हमारे पास आंसर्स लिखे हुए हैं, अब हम क्विकली चेक कर लेते हैं. सो दीज आर आंसर्स. एक बार आप चेक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो, लेट्स मूव अहेड. फाइंड दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, बस उन बुक में से देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है. सो अब हम इसके सीधे आंसर्स देखते हैं. दिस मेड टैरो sadder than ever. He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual. He began to chop even faster. Next morning, Taro started for work even earlier. इन सब में एक चीज नोटिस करिए कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं they end with ER. Basically, they are all comparative degrees. जो हमारे पास 3 डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जांपल हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. जब कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो हम बोलते हैं इट्स वेरी हार्ड. सपोज एग्जाम्पल, इट्स वेरी हार्ड. अब मान लो मैं 2 काम को कंपेयर कर रही हूँ, सो इट्स हार्डर देन द अदर जॉब. और मान लो मैं बहुत सारे लोगों में कंपेरिजन कर रही हूँ, सो इट्स द हार्डेस्ट जॉब.
तो इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री। सो ये सारे जो हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कुछ बोलेगा वो। Speak the following sentences clearly but as quickly as you can. Let them learn them by heart. Okay, so अब हम कुछ alliteration की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये आप लोगों को खुद करना है। मैं एक बार बोल के बताऊंगी क्योंकि I am not good at it. But no, don't make fun of me. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Okay, second one is Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was a little bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better. ये दोनों याद करने, अगर याद कर लिए ना मुझे बताना if you are done with this. Now let's see the next question. The story Taro's Reward shows that Taro is thoughtful, hardworking and also wise. Read aloud the parts of the story that shows these qualities in Taro. अब हमको इसमें कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बुक में ऐसी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि टैरो बहुत हार्डवर्किंग था, बहुत ड्यूटीफुल था, थॉटफुल था, वो छोटे छोटे जो स्टैंजास हैं वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। सो आई एम जस्ट रीडिंग इट लाउड. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad because he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Okay, so ये हो गया हमारा पहला point. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत intelligent भी था. Now next question. Like Patrick in the story, who did Patrick's homework, Taro is also helped by magic. Do you believe in magic? What are the magical things that happen in these stories? So यहाँ पे जो हमने last story पढ़ी थी, who did Patrick's homework, और ये वाली जो story है Taro's reward, इन दोनों में there is some magical element. इधर पे एक magical waterfall है और वहाँ पे you had an elf. So अब यहाँ पे question क्या है? Do you believe in magic? ये हो गया आपका पहला question. What are the magical things that happened in these stories? ये हो गया second question कि कौन सी magical चीज़ें हुई थी इन stories में. So first part, I believe in magic. I'm sure you also believe in magic. So I have written the answer like this. Yes, I believe in magic. But I also know that it is a matter of playing tricks and require practice. I'm talking about the basic magic. I'm not talking about जो magicians करते हैं वो क्या होते हैं? They are only tricks और उनको practice की ज़रूरत होती है. In Patrick's story, there is an elf that helps him to do his homework. अब इन दोनों में कौन से magical creatures हैं? So Patrick की story में क्या है? एक elf है जो उसको homework करने में help करता है, और टैरो की स्टोरी में मैजिकल थिंग्स कब होते हैं? जब वो जो वाटर है वो ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल का वो साके में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टोरी डू यू लाइक बेटर एंड व्हाई? डू यू नो सच स्टोरीज इन अदर लैंग्वेजेस? डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास. So इसमें क्या है कि do you like you know about the who did Patrick's homework and you also know the story Taro's reward. आपको क्या लगता है कौन सी स्टोरी बेटर थी? तो ये totally it's your answer. Honestly speaking, I do like both the stories as they are interesting and have a hint of magic. However, I really appreciate Taro's story as it teaches us a major lesson that hard work always pays off and that we should always respect and obey our parents who sacrifice so much for our sake. मतलब इसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि मुझे दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी लगी, दोनों में क्योंकि थोड़ा सा मैजिकल चीज़ है, लेकिन मुझे टैरोस रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है. वो क्या है कि हमको जो है हमेशा जो हमारा हार्डवर्क है, हम कभी जब बहुत मेहनत करते हैं वो कभी ना कभी पे ऑफ करता है. हो सकता है तुरंत नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी वो पे ऑफ ज़रूर करता है. और हमें हमेशा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं. So guys, that's it. Now we have another one. Write a paragraph or two about these two stories and comparing them. मतलब who did Patrick's homework and Taro's reward. इन दोनों स्टोरीज को कंपेयर करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है. तो क्विकली देख लेते हैं क्या लिखना रहेगा. द स्टोरी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. किसके बारे में है? अबाउट अ यंग बॉय
who hated doing his homework. One day he saves an elf from a cat and the little man grants him a wish. Patrick asks the little man to do his homework until the end of the semester and the elf complies with it. और पैट्रिक क्या बोलता है, ठीक है मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मेरी मदद करो, तुम मेरा होमवर्क करो, और elf complies with it मतलब elf उसको एक्सेप्ट कर लेता है. This is a very natural story of all the students who hate homework and want someone else to complete their pending work. ये बहुत ही नेचुरल स्टोरी है जो हर स्टूडेंट की कहानी है जिनको होमवर्क करना नहीं पसंद है और लगता है कि कोई मेरा पेंडिंग वर्क कर दो. ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ पे उसको हार्डवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम टैरो ज़ेवॉर्ड की स्टोरी पढ़ रहे हैं जहाँ पे वो एक यंग वुडकटर के बारे में जो कि थॉटफुल है, एक बहुत ही थॉटफुल सन है अपने पेरेंट्स के लिए. ही ट्राइज हिज बेस्ट टू कीप हिज पेरेंट्स हैप्पी. वो बहुत कोशिश करता है कि अपने पेरेंट्स को खुश रखे. एंड इवन गॉड फेवर्स हिज थॉटफुलनेस एंड रिवॉर्ड्स हिम. और गॉड भी जो है वो उसका जो थॉटफुलनेस है उसको रिवॉर्ड करते हैं. अ मैजिकल वाटरफॉल ऑफर्स साके इंस्टेड ऑफ प्लेन वाटर फॉर हिज ओल्ड फादर टू ड्रिंक. एक मैजिकल वाटरफॉल क्रिएट होता है जिसमें से साके बह रहा होता है जो कि उसके पापा को चाहिए होता है. This story has a moral lesson that hard work always pays off and that we should always respect and obey our parents who sacrifice so much for our sake. Now this is sake and this is sake, so don't get confused. So दोनों में बेसिकली इस आंसर में आपको दोनों की एक छोटी छोटी समरी लिखनी है एंड दैट्स इट. पहले इसमें ही वॉज नॉट एट ऑल हार्ड वर्किंग, दूसरे में ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. स्टार्टिंग में उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा बट एट लास्ट इट पेड ऑफ. यहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, सो ऑल्सो अगेन ही गेट्स अ रिवॉर्ड. सो दैट्स द कॉमन थिंग अबाउट बोथ ऑफ द स्टोरीज. नाउ लिसन टू दीज चिल्ड्रन, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? I think swimming is more difficult than driving. I think it is much less difficult. Anyhow, neither of them is as difficult as learning English. अच्छा, आंसर अब यहाँ पे क्या है कि क्या ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द थ्री बॉयज आर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट बॉय कंसिडर स्विमिंग टू बी मोर डिफिकल्ट देन ड्राइविंग. उसके हिसाब से जो उन्हें लिखा है बस हमें उसके बेस पे एक पैराग्राफ फॉर्म करना है कि पहले बच्चे को लगता है कि जो स्विमिंग है वो ड्राइविंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है. द सेकेंड बॉय डिसअग्रीज विद इट. डिसअग्री मतलब वो अग्री नहीं करता. He thinks that swimming is much less difficult than driving. उसको क्या लगता है स्विमिंग तो ड्राइविंग से बहुत ही ईजी है. However, the third boy thinks that learning English is most difficult task in comparison to swimming and driving. थर्ड बच्चे को क्या लगता है कि ये दोनों तो फिर भी हो जाता है, इंग्लिश ना सीखी जाती है भाई. But please, if you are coming to Magnet Brains, don't ever think that English is tough because here we have teachers who will help you in every possible way, right? So here let's go to the next question. Again you have to work in groups. Come to some agreement on each of the activities given below. Decide which is the most interesting, dullest, most dangerous, safest, most rewarding, most exciting. अब यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है तो तुम्हें ये बताना है सबसे ज़्यादा डल कौन सी है, बोरिंग कौन सी है, डेंजरस कौन सी है, सेफ कौन सी है, सबसे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स किस में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कौन सी है, ये आप खुद कर सकते हो. So guys, this is like how I have most interesting for me is dancing, watching TV, listening to music. Dullest is knitting, sewing, learning languages, but not for everyone. Most dangerous, mountain climbing. Safest, walking and stamp collecting. Most rewarding, cooking, reading, fishing, painting, and most exciting are playing football and swimming. Now you can find it totally different. For you maybe cooking is the most interesting thing and maybe most exciting is learning languages. But it's totally on you, so please do it yourself, okay? Now last is dictation that you have to do. You just have to write the words that rhyme with these words. Like bed के साथ it's red and shed, wax, x, tax, fast, last, cast, blast, or cast is already there. Chop is hop, shop, blop, mop, young, tongue, unsung. So any word, whatever comes to your mind, you can write two words that rhyme. And yay, here we are done with our chapter. I hope you understood it. Question answers are done. Chapter reading is done. Please make sure that you
go through the two videos, the part 1 and the part 2, and if you have any doubts, ping me in the comment box and I'll come back to you on that. So now in the next video we are going to start with the poem of this particular chapter. So stay tuned, stay connected, and bye bye.